Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic of discussion is human resource management in education. Very first, its overview. Firstly, we will discuss its meaning, then the concepts of human resource management, then aims and objectives of HRM, then it comes historical background, and lastly difference between human resource management and human resource development. First, we discuss what is management. It is the art of getting work done through other people. Sometimes other peoples in the organization do some work. Then management in the business and organization is the function that coordinates the efforts of people to accomplish goals and objectives using available resources efficiently and effectively. It is a function of different people. It is the effort of different people to complete their goals and objectives by utilizing their available resources very effectively, very efficiently. Now, first question is, what is human resource? In common parlance, human resources means the people. However, different management experts have defined human resources differently. सबसे पहली बात तो यह है कि जो कॉमन बात की जाती है इसके बारे में, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, इसका मतलब है जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले. लेकिन मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने इसकी मुख्तलिफ तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, माइकल जूसियस हैव डिफाइंड ह्यूमन रिसोर्स एज अ होल कंसिस्टिंग ऑफ इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरेक्टिंग फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड एथिकल कंपोनेंट्स. एक ऐसा होल है जिसमें फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और एथिकल कंपोनेंट्स को आपस में इंटरलेट किया जाता है, और ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होती हैं और इंटरेक्ट करती हैं. फिर एक और डेफिनेशन है जो कि बयान की है लियोन सी मेजिन्सो ने. From the national point of view, human resources are knowledge, skills, creative abilities, talents, and attitudes obtained in the population. Whereas from the viewpoint of the individual enterprise, they represent the total of the inherent abilities, acquired knowledge, and skills, and exemplified in the talents and aptitudes of its employees. इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु मेक अप द वर्कफोर्स. के इंडिविजुअल्स का एक ऐसा सेट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होते हैं. वो क्या कर रहे होते हैं? दे मेक अप द वर्कफोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बिजनेस सेक्टर, इकोनॉमी. अदर टर्म्स समटाइम्स यूज्ड इंक्लूड, इसके अलावा उसमें और जो चीज़ें आ सकती हैं वो हैं मैन पावर, टैलेंट, लेबर और सिंपली पीपल. मतलब ये कि उसमें जो दूसरी चीज़ें आ सकती हैं वो मैन पावर हो सकते हैं, लोगों का टैलेंट हो सकता है, लेबर हो सकती है, या सिंपल वर्ड में हम कहें तो दैट इज़ पीपल. अब हम आ जाते हैं मीनिंग. व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? It is defined as the art of procuring, developing, and maintaining component workforce to achieve the goals of an organization in an effective and efficient manner. Then, in simple words, HRM is the process of making the efficient and effective use of human resources so that the set goals are achieved. मतलब ये कि किस तरीके से लोगों को बनाया जाए, उनको इतना एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाया जाए ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स वगैरह बनाए गए हैं उनको अचीव किया जा सके. देन वी मे प्रोसीड. HRM इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
directing and controlling the procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of human resources to the end that individual, organization, and social objectives are accomplished. Another definition is given by Filippo: personal management, or we can say human resource management, is the planning, organizing, directing, and controlling of the procurement, development. यहाँ पर 4 चीज़ें बार बार बयान की जा रही हैं. ये कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग of the procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of human resources to the end that individual, organizational, and social objectives are accomplished. According to DeCenso and Robbins, HRM is concerned with the people dimension in management. Since every organization is made up of people acquiring their services, developing their skills, motivating them to higher levels of performance, and ensuring that they continue to maintain their commitment to the organization are essential to achieving organizational objectives. This is true regardless of the type of organization: government, business, education, health, recreation, or social action. Human resource management can also be defined as a process of procuring, developing, and maintaining component human resources in the organization. ऐसा क्यों किया जाएगा? So that the goals of an organization are achieved in an effective and efficient manner. ताकि किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बड़े अच्छे तरीके से efficiently और effectively अचीव किया जा सके. In short, human resource management is an art of managing people at work in such a manner that they give their best to the organization for achieving its set goals. Now we come to the next point, that is elements of human resource management. There are core elements. These core elements are 3 in number. These are organization, people, management. मतलब ये कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के देखा जाए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 3 कोर एलिमेंट्स हैं. ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीपल हैं और उनकी मैनेजमेंट है. द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, अब इसके प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं? इसके प्रोसेस में हैं प्लानिंग, अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग, रिटेनिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज से मुराद इसके एम्प्लॉइज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. HRM कॉन्सेप्ट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल एट वर्क. जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं मैनेजमेंट के अंडर, या वो मैनेजमेंट, तो ये ह्यूमन रिसोर्स है. HRM इज़ द प्रोसेस विच बाइंड्स पीपल विद ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों को यकजा किया जाता है, इकट्ठे किया जाता है. फिर क्या किया जाता है? एंड हेल्प्स बोथ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ईच अदर्स गोल्स. फिर ऑर्गेनाइजेशन भी और वो लोग भी गोल्स को अचीव करने में एक दूसरे की मदद करते हैं. वेरियस पॉलिसीज, प्रोसेस and practices are designed to help both employees and organization to achieve their goals. फिर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कुछ प्रोसेस अडॉप्ट किए जाते हैं और प्रैक्टिसेस होती हैं ताकि वो एम्प्लॉइज़ और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके गोल्स वगैरह को अचीव किया जा सके. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट that deals with people at work. It is concerned with human dimensions of management of the organization, as organization consists of people, therefore acquiring them, developing their skills, providing them motivation in order to attain higher goal, and ensuring that level of commitment is maintained are the important activities. अब हम HRM के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल्स. ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने गोल्स तक कैसे पहुंचना है या कैसे अचीव करना है.
टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द वर्क फोर्स एफिशिएंटली, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एबिलिटीज़ को और स्किल्स को किस तरीके से हासिल करना है। टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विच विद वेल ट्रेंड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे वेल ट्रेंड और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ फ्राहम करने। टू इंक्रीज टू द फुलेस्ट द एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी वर्क लाइफ या जो कोई काम किया जा रहा है उसकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। टू कम्युनिकेट ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ टू ऑल एम्प्लॉयज़, जो पॉलिसीज़ हैं वो तमाम मुलाजमों तक या तमाम लोगों तक जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें उन तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना। टू बी एथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, एथिकली और माशरे के लिहाज से कितने ज़िम्मेदार होना है ताकि अपने माशरे की ज़रूरियात का ख्याल रखा जा सके। अब ज़रा इस फ्लो शीट डायग्राम से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन देखिए। हम लेफ़्ट साइड से देखते हैं। देखें, सबसे पहले रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंट्रोडक्शन, देन कम्स पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर दैट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, then there is performance and reward management. In the meanwhile there is talent management, then succession and career planning, उसके बाद लेबर रिलेटिव और लास्ट पे HR प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस। Human resources help in transforming the lifeless factors of production into the useful products. जो चीज़ें यूज़लेस हैं उनको यूज़फुल बनाना है, उसमें कन्वर्ट करना, बेफ़ायदा चीज़ों को फ़ायदामंद में। They are capable of enlargement, that is capable of producing an output that is greater than the sum of inputs. Once they get inspired, even ordinary people can deliver extraordinary results. समटाइम ऐसा हो जाता है कि जो आम लोग होते हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देते हैं। They can help an organization achieve results quickly, efficiently and effectively. जो लोग हैं ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, वो समटाइम ऐसा करते हैं कि रिजल्ट्स को बहुत क्विकली, बहुत एफिशिएंटली और बहुत इफ़ेक्टिवली फ्राहम कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फ़ायदे में चली जाती हैं। जो चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं हैं उनको फ़ायदे में ले आना बहुत अच्छे तरीके से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डेवलप कर सकें और ग्रो कर सकें और स्ट्रॉन्ग हो सकें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। डेविस ने क्लासीफाई किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को 4 कैटेगरीज़ में, और ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। वेरी फर्स्ट देयर इज सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। इट्स सपोर्टिव फंक्शंस आर लीगल कॉम्प्लायंस, बेनिफिट्स, यूनियन मैनेजमेंट, रिलेशंस। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके जो सपोर्टिंग फंक्शंस हैं वो हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉय रिलेशंस, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजल, प्लेसमेंट एंड असेसमेंट। एंड द थर्ड कैटेगरी इज फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स सपोर्टिव फंक्शंस आर अप्रेजल, प्लेसमेंट, assessment. Then comes the last category, that is personal objectives. Its supportive functions are training and development, appraisal, placement, compensation and assessment. Now we go to the next topic, that is what is the scope of human resource management. Very first we will discuss the personal aspect. It is concerned with the manpower planning, recruitment, selection, placement, transfer, promotion of the persons, training and development, layoff and retrenchment, remuneration, incentive, productivity. इसके स्कोप की अगर बात करें तो सबसे पहले हम जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उसके एस्पेक्ट से देखेंगे।
तो ये चीज़ें जो बयान कर दी हैं, जिसमें मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, ले ऑफ, रिटेंचमेंट है, रेम्यूनरेशंस हैं, इंसेंटिव है, प्रोडक्टिविटी, मतलब उन लोगों की अगर बात करें जो उसमें काम कर रहे हैं तो उनको क्या फ़ायदे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के. Then the second point, that is welfare aspect. It deals with working conditions and amenities such as, इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं जिसमें वेलफेयर के काम किए जाते हैं वो हैं कैंटीन्स, क्रेचेस, रेस्ट एंड लंच रूम्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड द लास्टली रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़. मतलब ये कि जो वेलफेयर के काम हैं जो जनरली किए जाते हैं किसी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, उसमें ये कैंटीन्स, क्रेचेस, रेस्ट एंड लंच रूम्स हैं, हाउसिंग हैं, ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल असिस्टेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ एंड सेफ्टी और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं. द थर्ड स्कोप, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट. इंडस्ट्रीज़ का आपस में किस तरह से ताल्लुक़ होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर की जाती हैं. इट कवर्स यूनियन, मीन्स मैनेजमेंट रिलेशंस, मैनेजमेंट्स के आपस में कैसे ताल्लुकात हैं. जॉइंट कंसल्टेशंस, एक दूसरे के साथ कंसल्ट करना बाहमी रजामंदी के साथ. कलेक्टिव बारगेनिंग्स, ग्रीवेंसेस, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं उनकी बात की जा सकती है. डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, और डिसिप्लिन के हवाले से कौन कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं. नाउ कम्स व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इसमें 4 चीज़ें आती हैं: कंट्रोल, मेंटेनेंस, एक्विजिशन और डेवलपमेंट. सबसे पहले अगर हम बात करें कंट्रोल की, तो कंट्रोल में क्या आता है. ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. उसके बाद आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मेंटेनेंस में क्या चीज़ें आ जाती हैं. मेंटेनेंस में आ जाते हैं रेम्यूनरेशन, मोटिवेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. देन कम्स एक्विजिशंस. एक्विजिशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, मतलब लोगों के जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट वगैरह की चीज़ें वो एक्विजिशन में आ जाएंगी. देन कम्स डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं. ट्रेनिंग, कैरियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, इंटरनल मोबिलिटी, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे काम करवाना है, कैसे उनको मूव करवाना है. अब जो हमारे लेक्चर का लास्ट पार्ट है, दैट इज़ हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. द फर्स्ट पॉइंट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, machines are brought in the production process, rapid progress in technology, jobs were more fragmented, specializations increased, but left workers with dull, boring, monotonous jobs. Government did very little to protect the interest of the workers. In the history and origin, the second point is scientific management. In the scientific management, to improve efficiency and speed, F.W. टाइलर इसका एडवोकेट था साइंटिफिक मैनेजमेंट का. F.W. टाइलर एडवोकेटेड साइंटिफिक मैनेजमेंट. Scientific management is nothing but systematic analysis and breakdown of work into smaller mechanical elements and rearranging into most efficient combinations. Scientific management में क्या है कि जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं, बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, उनको ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे एलिमेंट्स में, फिर उनको रीअरेंज करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी मिल सके. इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग वाज आल्सो आइडेंटिफाइड. इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो इम्पोर्टेंस थी वो ट्रेनिंग पे दी गई. द थर्ड पॉइंट इन द हिस्ट्री एंड ओरिजिन, दैट इज ट्रेड यूनियनिज्म. वर्कर्स जॉइंट hands to protect against the exploitative tendency of employers and unfair labor practices. इसमें जो वर्कर्स का आपस में यूनियन थी, जो उनका आपस में इत्तेहाद था, जो उनको रोज़गार फराहम करने वाले लोग थे, और उनकी जो पॉलिसीज़ थी जो उनके लिए अनफेयर थी, इसके ख़िलाफ़ वो लोग इकट्ठे हुए. ट्रेड यूनियन ट्राई टू इम्प्रूव वर्क कंडीशंस, पे एंड बेनिफिट्स, डिसिप्लिनरी एक्शंस. ट्रेड यूनियन जो थी, जो यूनियन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी हुई थी, वो
वर्क कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करती थी, पे वगैरह के लिए बनी, और बेनिफिट्स के लिए, और जो डिसिप्लिनरी एक्शंस थे उनके लिए बनाई गई। द फोर्थ पॉइंट in the history, that is human relations movement. After Hawthorne experiments conducted by Elton Mayo, productivity not only depends upon rewards, कहता है कि जो productivity है वो सिर्फ rewards पे और job design पे डिपेंड नहीं करती, but it also depends on certain social and psychological factors also. ये social और psychological factors पे भी डिपेंड करती है। Human relations movement led to the implementation of behavioral sciences techniques in industry. The fifth point in the history and origin is human resources approach. During early 60s, pet milk theory of human religionists had been largely rejected. 60s के आगाज़ में जो थ्योरी बनी पेट मिल्क थ्योरी, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। हैप्पी वर्कर्स आर प्रोडक्टिव और हैप्पी काउस गिव मोर मिल्क, जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स ज़्यादा खुश होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, या जो ज़्यादा गाय है, जो ज़्यादा खुश गाय है वो ज़्यादा अच्छा दूध देती है। इट वॉज रिकग्नाइज दैट वर्कर्स आर यूनिक एंड हैव इंडिविजुअल नीड्स। द ट्रेंड मूव टूवर्ड्स ट्रीटिंग एम्प्लॉइज एज रिसोर्सेज और एसेट्स एमर्ज्ड, कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। और फिर ट्रेंड क्या था? ट्रेंड ये बनता गया कि जो एम्प्लॉइज़ हैं या जो लोग काम कर रहे हैं और वो एक असासा है उस ऑर्गेनाइजेशन का। अब लास्ट पे हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? वेरी फर्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज़ अ सर्विस एंड रिएक्टिव फंक्शन, and human resource development, it is proactive function. In human resource management, it seeks to improve the efficiency of people and administration, but in human resource development, it seeks the development of total organization and its culture. The third point is in human resource management, the responsibility of human resources is considered, but in human resource development, the responsibility of all the managers is considered. And then the fourth point, in human resource management, the focus is on salary, economic reward, job specializations for motivating people, but in human resource development, the focus was on autonomous work group, job challenges, and creativity for motivating people. Then in the difference, the fifth point is HRM deals with all aspects of human resource functions, but HRD means human resource development deals with the development part only. In human resource management, recruitment, reward among others is concerned, but in human reward, only the development of skills of the employees is concerned. HRM functions are mostly formal, but the functions of HRD, they can be informal. In human resource management, it aims at providing an optimal working environment for employees to fully and freely utilize their skills to their best to achieve the company's intended output. But in human resource development, it aims at developing a superior workforce so that the company and individual employees may achieve their work goals in the customer services. हमने आज इसका इंट्रोडक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का देखा है, इसका ओरिजिन देखा है, हिस्ट्री देखी है, इसके फंक्शंस देखे हैं, डिफरेंस देखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, और लास्ट पे कुछ कंक्लूजन। ह्यूमन रिसोर्सेज आर की एलिमेंट्स इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ monitoring programs to meet their objectives. Through recruitment, training and development, HRM selects the best employees for organizations who play their role to achieve strategic goals. जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट है वो अपनी तरफ से बेहतरीन लोगों को सिलेक्ट करती है, जॉब पे लाए जाते हैं अच्छे से अच्छे लोग ताकि अपने गोल्स को अचीव किया जा सके।
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ HRM प्रोफेशनल्स। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रोफेशनल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ है। बेस्ट विशेस, अगले लेक्चर के लिए हम बाद में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।